इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले डालते हेडलाइंस पर। पुडुचेरी को पीएम मोदी की सौगात, कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और डीएम के विकास में बाधक। नागपुर के फैक्ट्री में हुआ बड़ा धमाका, 17 मजदूरों की हुई मौत, कई गंभीर रूप से घायल। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला की हत्या के बाद भारत के भी लोगों में दिखा आक्रोश, उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर दर्ज करवाया विरोध। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की अपनी तारीफ, कहा सभी पढ़े लिखे अमेरिका जाएंगे तो कौन सुधारेगा देश। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें मिलकर काम करती है तो रिजल्ट जल्दी आते हैं। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पुडुचेरी को दिल्ली के एक परिवार का एटीएम बना रखा है। कांग्रेस और डीएम के विकास में बाधक है, अब वही ताकतें फिर से सत्ता के लिए भूखी है। श्री मनसुख मांडविया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, श्री के कैलाशनाथन, स्पीकर श्री आर सेल्वम, होम मिनिस्टर श्री ए नमस्वायम, अदर लीडर्स, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ पुडुचेरी, वणक्कम। Friend, it is an honor to be here in Puducherry. This is the land of Siddharth saints, poets, and freedom fighters. This is where Mahakavi Subramanya Bharati ignited the fire of nationalism. From here, Sri Aurobindo and the mother gave a new spiritual vision for the whole world. அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் வீட்டிருக்கும் எல்லா தலைவர்களையும் வணங்கி, புதுச்சேரியின் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, எனக்கு புதுச்சேரியில உங்க முன்னாடி இருக்கிறது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. இது சித்தர்கள், துறவிகள், கவிஞர்கள், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் வாழ்ந்த புண்ணிய பூமி. மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி தேசியவாதத்தின் பெரு நெருப்பை இந்த புதுச்சேரியில தான் தொடங்கி வச்சார். இங்கிருந்து தான் ஸ்ரீ அரவிந்தரும் ஸ்ரீ அன்னையும் முழு உலகத்துக்கும் புதிய ஆன்மீக பார்வையை வழங்கினார்கள். Friend, when I came here earlier, I had given the mantra of best Puducherry. Best means business, education, spirituality, and tourism. In the last 4.5 years, this vision is bearing fruits.
Puducherry has witnessed good governance and development. When the center and the UT work with the same vision and dedication, results are faster and better. Puducherry has shown an impressive rise in per capita income. It has also achieved the highest social progress index score in the country. Now, the double engine NDA government will add more momentum to Puducherry's growth. Today, projects worth more than 2,700 crore rupees are being inaugurated and foundation stones are being laid. These projects will transform the lives of the people. நண்பர்களே, நான் இதுக்கு முன்னாடி புதுச்சேரி வந்திருந்தப்ப பெஸ்ட் புதுச்சேரின்னு ஒரு தாரக மந்திரத்தை இங்க உச்சரித்தேன். பெஸ்ட்னா வணிகம், கல்வி, ஆன்மீகம், சுற்றுலா, பிசினஸ், எஜுகேஷன், ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் டூரிசத்தை ஒன்றாக்கி புதுச்சேரியை பெஸ்ட் புதுச்சேரியை ஆக்குவோம்னு நான் உறுதி எடுத்தோம். இந்த 4.5 ஆண்டுகள்ல அந்த தொலைநோக்கு மிக நன்றாக வளர்ந்திருக்கிறது. புதுச்சேரி மாநிலம் ஒரு நல்ல ஆட்சியை, ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை கண்டிருக்கிறது. மத்திய அரசும் யூனியன் டெரிட்டரியும் ஒன்றா சேர்ந்து செயல்பட்டா எப்படி நன்றாக இருக்கும் என்பதற்கு புதுச்சேரி உதாரணமாக இருக்கிறது. அதனால தான் இங்க முடிவுகள் எல்லாம் வேகமாகவும் சிறப்பாகவும் எடுக்கப்படுது. தனிநபர் வருமானத்துல பெரிய வளர்ச்சியை புதுச்சேரி கண்டிருக்கு. அதுலயும் நாட்டிலேயே சமூக முன்னேற்ற குறியீட்டு மதிப்பெண்ல புதுச்சேரி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. இரட்டை என்ஜின் என்டிஏ சர்க்கார் புதுச்சேரியின் வளர்ச்சிக்கு இனி மேலும் உத்வேகம் கொடுக்கும், புதிய வேகம் எடுக்கும். இன்னைக்கு 2700 கோடி ரூபாய் மதிப்புல பல நலத்திட்டங்கள் தொடங்கி வைக்கப்படுகின்றன. வளர்ச்சிக்கு புதுச்சேரிக்கு அடிக்கல் நாட்டப்படுகிறது. இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் புதுச்சேரி மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கும். Friends, across India, there is a great emphasis on building top quality infrastructure. In this year's budget, we have set aside a record 12 lakh crore rupees for building infrastructure. This will also benefit the people of Puducherry. We included Puducherry under the special assistance to states for capital investment scheme, which used to be open only for states. More funding for infrastructure means better roads, water supply, coastal infrastructure, schools, hospitals, and many such projects. These facilities directly make the lives of the people better. நண்பர்களே, இந்தியா முழுவதிலும் உயர்தரமான உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குறதுல நாம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்லயும் பாத்தீங்கன்னா வரலாற்று சாதனையாக உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்குவதற்கு ஒரு சாதனை அளவாக 12 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த முதலீடு புதுச்சேரி மாநில மக்களுக்கும் பெரிய பயனை கொடுக்கும். இதுவரைக்கும் மாநிலங்களுக்கு மட்டுமே கிடைச்சிட்டு இருந்த மூலதன முதலீட்டு சிறப்பு உதவி திட்டம் இப்ப முதல் முறையா புதுச்சேரியையும் அதுல இணைச்சிருக்கோம். இதனால யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரிக்கு மிகப்பெரிய பலன்கள் உண்டு. உள்கட்டமைப்பு நிதி அதிகமா வரதுனால புதுச்சேரிக்கு சிறந்த சாலைகள், சிறந்த நீர்வளம், கடலோர உள்கட்டமைப்பு, பள்ளிக்கூடம், மருத்துவமனை என்று பல புதிய
திட்டங்கள் கிடைக்க இருக்குது. இந்த அடிப்படை வசதிகள் எல்லாம் நேரடியாக புதுச்சேரியின் மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் என்று நான் உறுதி அளிக்கிறேன். Friends, a strong and empowered youth is the foundation of our growth. We are working to support the dreams. At NIT Karaikal, the new Dr. APJ Abdul Kalam Engineering Block and modern hostel facilities will strengthen technical education for many students. Infrastructure upgrades have been done in Puducherry University. Its new lecture halls, girls' hostels, महाराष्ट्र के नागपुर में SBL एनर्जी लिमिटेड में हुए धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। जिसके बाद एक चश्मदीद ने कहा कि मैं जितने लोगों को बचा सकता था मैंने उतने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। घटना ये वाली हम गए थे वहाँ पे, तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ वैसे हम सीधे गए, कोई भगा नहीं, कोई नहीं, तो सब जन डर रहे थे, तो मैं सीधा अंदर गया अकेला। मैंने बोला जैसे जैसे मेरे हाथों से निकले वैसे वैसे मैंने निकाल के गार्डन में डाले और उधर से हमारी प्राइवेट गाड़ियां बुलाई, कंपनी की कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ एक एम्बुलेंस थी, तो प्राइवेट गाड़ियां निकाली हमारी और हमारी गाड़ी में डाल के रवाना किया उनको। जब ये ब्लास्ट हुआ तब क्या मंजर था? आग लगी थी? आग नहीं, जगह पे ब्लास्ट हुआ, जगह पे? हाँ, मेन पावर पे। और कितने लोग आपने देखे? कितने लोग? अभी मैंने 10 लाशें निकाली बाहर, 16 लोगों को मैंने गाड़ी में रेफर किया और मेरा दोस्त था उसने 4 लाशें निकाली, एक जन ने 7 निकाली और 4 दबी हुई थी और बाकी मालूम में कुछ होगा तो वो मालूम नहीं, क्योंकि आज का मेन पावर था वहाँ पे। कौन से एग्जैक्ट यूनिट में हुआ है? क्या सेल प्लांट, सेल प्लांट, क्या काम चलता है? सेल बनता है, उसकी कैप बनती है वहाँ पे। और क्यों हुआ यह हादसा, कुछ आपको पता है? उतना तो मालूम नहीं, क्योंकि वहाँ पे सभी लेडीज ही काम करती है। पूरी लेडीज है? हाँ हाँ, आपने जो लाश निकाली वो पूरी लेडीज की? पूरी जेंट्स एक भी नहीं उसमें। हाँ, तो ये कंपनी के एम्प्लॉय थे सब? हाँ, सुपरवाइजर थे नहीं, कोई नई भर्ती वाले आते हैं उसमें, तो उन्होंने बताया नहीं कि नई भर्ती वाले करके कि उनको कैसा हैंडल करना है, क्या करना है, उसने ऐसा कुछ बताया नहीं, बोलते सुपरवाइजर ने, ये उनका कहना है। इसलिए आपका नाम? युगानंद सुरेंद्र आदमने, झीलपा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की अमेरिकी हमले में मौत के बाद भारत के भी लोगों में आक्रोश बना हुआ है, जहां जम्मू कश्मीर में कश्मीरी सिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया, जहां एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि जिनके खून में गद्दारी है उन्होंने खामेनेई को धोखे से मारा है। इसके साथ ही AIAA के अध्यक्ष साजिद राशिदी ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी सुप्रीम कमांडर अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या की है। वर्ल्ड कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और इन्हें दोषी ठहराना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय मुस्लिम जमानत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि इससे पूरा इस्लामी समुदाय स्तब्ध और दुखी है। उनका निधन न केवल ईरान के लोगों के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक क्षति है। देखिए, जो खबर आ रही थी खामनेई साहब के हवाले से जो खबर आई है वो खबर सही है और एक अजीम लीडर को आज हम लोगों ने खो दिया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमने किसी लीडर को खोया हो, मगर हाँ, हम दुनिया वालों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी कि किस तरीके से रोजे की हालत में हमारे अजीम लीडर को धोखा दे करके अमेरिका और इसराइल जलील लोगों ने शहीद किया है। देखिए, मैं तो साफ बात करना चाहूंगा कि मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलता आया है और जिसका हमेशा से ये कहना रहा है कि हम मजलूम की हिमायत में आवाज उठाते रहेंगे। आज खामेनेई साहब की शहादत हुई, मगर मैं दुनिया वालों से ये कहना चाहता हूं कि वो
इस बात का जवाब दे खामनेई साहब की शहादत हुई किस लिए, अमेरिका से दुश्मनी क्यों थी, इसराइल से दुश्मनी क्या थी। सिर्फ उनकी दुश्मनी ये थी कि वो मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाते रहे, दुनिया खामोश रही। और जो भी ईरान के तरफ और ईरान की तरफ से नहीं बोला है, मैं उनको यही कहूंगा, वो नाम के मुसलमान हो सकते हैं मगर हकीकत में वो सब के सब यजीद के तरफदार हैं। और जो हुसैनी है वो हमेशा मजलूम की तरफदारी करता आया है। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है खामनेई साहब की शहादत के बाद खत्म हो जाएगा, ये शहादत हमारी मीरास है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मौलाना आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत की खबर ने पूरी मिल्लत इस्लामिया को झकझोर कर दिया है और दुख में मुब्तला कर दिया है। उनका इंतकाल सिर्फ ईरान की आवाम के लिए नहीं बल्कि पूरी मिल्लत के लिए नुकसानदायक है और दुख की, गम की खबर है। जरूरत थी उनको आज ईरान की आवाम के लिए कि वो ढारस बने रहते और उनके सहारे, उनके दिशा और निर्देशों की जरूरत थी। मगर अमेरिका और इसराइल की जालिमाना कार्रवाई ने और अमेरिका की जुल्म और बर्बरियत ने उनको शहादत के मकाम पर पहुंचा दिया। अमेरिका सालों से ये चाहता था और खास तौर पर ट्रंप और इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, ये दोनों चाहते थे कि सुप्रीम लीडर को हम खत्म कर दें और इन लोगों ने खत्म ही कर दिया। ये अमेरिका हो और इसराइल, ये दोनों जालिम हैं, जाबिर हैं और ये लोग चाहते हैं ईरान में तख्ता पलट हो जाए। मगर ईरान में तख्ता पलट करना अभी इतना आसान नहीं है। अब ईरान के लिए और ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के लिए करो और मरो की स्थिति होगी और अब ये जंग और ज्यादा भयानक होगी। पूरी दुनिया को ट्रंप ने जंग में झोंक दिया है और इसका खमियाजा ट्रंप ने पूरी दुनिया को झोंक करके ये बता दिया है कि वो अमन नहीं चाहता बल्कि पूरी दुनिया में अशांति चाहता है। और ये अशांति ये कोई इंसान का काम नहीं है बल्कि ये काम शैतान का है। क्या कहेंगे अब, कई सारे भारतीय वहां फंसे हुए हैं, अब देश में मतलब इंडिया में भी प्रदर्शन हो रहे हैं इनकी मौत के बाद, क्या? मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि ईरान में जो भारतीय हैं, इसके अलावा जो खाड़ी देशों में भारतीय हैं, उन भारतीयों को कुशल लाने का इंतजाम किया जाए, व्यवस्था की जाए। इसमें सबसे ज्यादा भारतीय लोगों का नुकसान है कि वो लाखों की तादाद में अरब देशों में रहते हैं, कारोबार करते हैं, रोजी रोजगार से वाबस्ता हैं। अब उनको लाने और कुशल भारत पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार इसमें बेहतर से बेहतर कदम उठाएगी। तमाम जगह भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। कश्मीर में आज सुबह लाल चौक पर प्रदर्शन हुआ है इनकी मौत के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत पर, उनकी शहादत पर जिन लोगों में गम गुस्सा है वो जरूर अमेरिका के और इसराइल के खिलाफ उजागर होगा। मगर जहां जहां भी प्रदर्शन हो या प्रदर्शन जो हो रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्रदर्शन अमन और शांति के साथ में हो और कानून के दायरे में रह करके हों। ये भारतीय मुसलमान की बात नहीं है, ये खबर पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए बड़ी दर्दनाक खबर है। क्योंकि खामेनेई साहब जो है वो सारी दुनिया के लिए एक अच्छे इंसान थे, इस्लाम के सिपाही थे और उन्होंने जिस तरह शिया सुन्नी दीवारों को खत्म किया, सारे मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर लेकर आए, वो अपने हम में एक मिसाल थे।
अमेरिका ने उनको शहीद किया है, उनका मर्डर किया है। आलमी अदालत में जो हमारी वर्ल्ड कोर्ट है उसमें इनके खिलाफ केस चलना चाहिए और इनको दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क में घुसकर उसके सुप्रीम लीडर को मार देना ये कोई मामूली चीज नहीं है। अमेरिका की दादागिरी बाकायदा चल रही है। अमेरिका जब चाहता है, जहां चाहता है, जिस मुल्क में चाहता है, जो चाहे कर देता है। अभी आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के जो सदर थे कैसे उनको उठा लिया और सारी दुनिया उस पर खामोश है। मुझे तो एक शेर याद आता है कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो सारी दुनिया को ये तो समझ लेना चाहिए कि अमेरिका जब चाहेगा, जिसको चाहेगा, जैसे चाहेगा, जहां चाहेगा मार देगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप मेरे कत्ल पे चुप हैं, मैं आपके कत्ल पे चुप हूं। और खास तौर से मैं इस्लामिक दुनिया के जितने भी मुस्लिम लीडर हैं उनको शर्म दिलाना चाहता हूं कि चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो कहीं, तुम्हारी अपनी औकात कुछ भी नहीं है, कुछ भी हैसियत नहीं है। जब आयतुल्लाह खामिनाई जैसे आदमी को ये शहीद कर सकता है तो तुम तो उसके सामने मच्छर के पर के बराबर भी नहीं हो। इसलिए तुम्हें सोचना पड़ेगा इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए। और ये जंग जो है, ये जंग दो मुल्कों की जंग नहीं है, बल्कि ये इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत की जंग है। ये वो जंग है जो एक सदियों से इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान चली आ रही है। अगर तुमने इस जंग को नहीं समझा तो तुम भी मिटा दिए जाओगे और तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। सर, खामनेई की मौत की जानकारी देते हुए साथ में ये लिखा है कि दुनिया के इतिहास के सबसे दुष्ट व्यक्तियों में से एक की मौत हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा कमीना, सबसे बड़ा नीच, सबसे बड़ा जलील अगर कोई इंसान है वो ट्रंप है, क्योंकि वो यूएनओ के सारे जो लाइनें हैं उन तमाम लाइनों को क्रॉस करके जो भी कर रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। उसके कहने से कुछ नहीं होता। जो भी उसके सामने आड़े आता है, जो भी उसके सामने ये लगता है कि हाँ ये आदमी तुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो उसी को दुष्ट बताकर, कट्टरवादी बताकर, आतंकवादी बताकर मार देता है। और ये इतिहास रहा है अमेरिका का, सद्दाम हुसैन से लेकर और जितने भी मुसलमानों को, मुअम्मर कज़ाफी और कर्नल कज़ाफी और यासिर अरफात और ये जितने भी लोग इसने मारे हैं, ये तमाम के तमाम इनको कट्टरवादी बताकर, आतंकवादी बताकर उनको मार दिया गया और सारी दुनिया उस पर खामोश रही, इस्लामिक दुनिया खामोश रही। मैं समझता हूं कि सारी दुनिया को ये समझना पड़ेगा, आज ईरान, रूस, ये लोग जो चुप हैं, खामोश हैं, इनको भी सोचना चाहिए कल तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, फिर तुम्हारे लिए भी कोई नहीं बोलेगा अगर तुम आज चुप रहे। जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामिनेई को। खामिनेई मेरा शेर था, शेर, और कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामिनेई मरेगा, 1000 खामिनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इस्राइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं, इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक सभा में अपनी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने IIT में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अगर मैं चाहता तो अमेरिका पढ़ने जा सकता था, लेकिन उस समय मेरे मन में एक विचार आया कि अगर हम सभी पढ़े लिखे लोग IIT और बड़े संस्थानों में पढ़ाई करने के बाद अमेरिका चले जाएंगे तो हमारे देश की देखभाल कौन करेगा, हमारे देश को कौन सुधारेगा, इसलिए मैं अमेरिका नहीं गया। साथ ही कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे खिलाफ इतनी सारी जांचें क्यों करवाई। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं IIT में पढ़ता था, IIT में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, पढ़ने में अच्छा होता था मैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैं चाहता तो अमेरिका जा सकता था पढ़ाई के लिए, मैं चाहता तो नौकरी करने अमेरिका जा सकता था। मेरे बहुत सारे साथी अमेरिका चले गए, लेकिन उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि देश का बहुत बुरा हाल है। अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ के IIT से पढ़ के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के अगर अमेरिका चले जाएंगे तो अपने देश को कौन संभालेगा।
अपने देश को कौन ठीक करेगा? मैं अमेरिका नहीं गया, मेरे 6 नंबर थे, मैं अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकता था, मैं अमेरिका नहीं गया, मैं भारत में रहा। जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, मेरे को याद है सबसे पहला केस मेरे सामने आया, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने अपना केस करवाया और उसके बाद मेरे से कहता है, सर सेवा बताइए। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोला जी कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। बोला जी देखो, मैं तो ले आया आपके नाम के पैसे, आप नहीं लोगे तो मैं ही रख लूंगा। दोस्तों धीरे 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 पूरे डिपार्टमेंट में फैल गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, एक नया पैसा नहीं लेता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पूरे डिपार्टमेंट के लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ईमानदारी की कसमें खाया करते थे। फिर किस्मत ने मेरे को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। 10 साल मुख्यमंत्री रहा मैं। 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो मेरे से नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों नफरत करते हैं, मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे खिलाफ पता नहीं कितनी इंक्वायरी कराई, सारी इंक्वायरी करा ली, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला 10 साल के अंदर। आज मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल मुख्यमंत्री था, कितनी फाइलों पे साइन करे थे? कोई एक ठेकेदार, कोई एक दिल्ली सरकार का वेंडर खड़ा होकर कह दे केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। दोस्तों मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ईमानदारी कमाई है, देश से प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, मैं भारत से प्यार करता हूं। तो जब कोई देश से गद्दारी करता है, जब कोई देश का अपमान करता है, तो खून खौल उठता है। दोस्तों जोधपुर में भैरू बाग के बाहर स्थित ओसवाल सिंह सभा के क्वार्टरों को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाली कराया गया। ओसवाल शिक्षण समिति के सचिव प्रकाश जैन ने बताया कि लंबे समय से किराया ना देने और क्वार्टर खाली ना करने पर मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसमें समिति के पक्ष में फैसला आया, जहां कुल 8 क्वार्टरों में से पहले 4 खाली हो चुके थे, जिसके बाद अब 2 और खाली कराए गए हैं, जबकि शेष 5 तारीख तक खाली कराए जाएंगे। आगे इन क्वार्टरों का उपयोग समाज की योजना के अनुसार किया जाएगा। जोधपुर में ओसवाल सिंह सभा जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी भैरूबाग के बाहर 8 क्वार्टर्स बने हुए हैं जो कई वर्षों से किराएदार के पास थे। आज न्यायालय GM6 द्वारा उसका निर्णय दिया गया, अमीन नियुक्त किया गया। उस अमीन ने आके आज 4 क्वार्टर खाली करवाने की कार्रवाई की, लेकिन समय की थोड़ी कमी होने के कारण 2 तो संपूर्ण खाली करवा के समाज को सुपुर्द कर दिए गए। 2 का उन पार्टियों ने 2 दिन का समय मांगा, नया दिन होने के कारण उनको 3 तारीख तक का समय दिया गया। इस पर किसका कब्जा किया हुआ था? इसमें पूर्व में सरदार स्कूल जो थी, उसमें जो जॉब करते थे, टीचर्स थे, उन परिवारों को स्कूल में कार्यरत थे इसलिए किराए पे दे रखा था, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक न तो किराया दिया, रिटायर्ड हुए भी उनको 50-50 साल हो गए, लेकिन उन्होंने न खाली करके दिया, इसलिए मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा था। आज कोर्ट ने एक न्याय देके समाज के साथ बहुत अच्छा काम किया। आगे आपकी क्या योजना रहेगी? समाज की प्रॉपर्टी है, खाली हुई है, समाज की जनरल हाउस निर्णय लेगी इस प्रॉपर्टी पे समाज को क्या बनाना है, उस जनरल हाउस के निर्णय के अनुसार समाज द्वारा इस पे कार्रवाई करके जो भी भवन बनाया जाएगा वो समाज का स्वयं का लेना होगा। परिचय आपका? मैं प्रकाश जैन, सचिव शिक्षण समिति ओसवाल सिंह सभा जोधपुर। मेरे संपूर्ण इस कार्य में मेरे ओसवाल सिंह सभा के पदाधिकारी, हमारे उपाध्यक्ष गौतम सा सांड, दिलीप S जैन, रमेश जी धारीवाल महासचिव, वीरेंद्र जी बंसाली कोषाध्यक्ष, मुकेश जी सांड, अशोक जी बागरेचा गौशाला सचिव, इन सभी लोगों का और उसके साथ समाज के दूसरे गणमान्य लोगों का भी पूरा सहयोग रहा, जिससे इस कार्य को हम सुचारू रूप से कर सके। बाकी भैरूबाग के सामने जो क्वार्टर बने हुए थे, जो पिछले कई सालों से
किराएदार को सरदार स्कूल के जो टीचर्स थे उनको दिए हुए थे। जैसा कि प्रकाश जी ने बताया था, अभी प्रकाश जी सरदार दून स्कूल के सचिव हैं। इनके नेतृत्व में हम सब ने मिलकर जो कोर्ट के आदेश हुए, उस कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए सबने साथ मिलकर, सब जितने भी पदाधिकारी हैं सब ने मिलकर 4 क्वार्टर तो पहले खाली कराए थे। 4 क्वार्टर के आज जो ऑर्डर हुए थे उसके अंदर 2 क्वार्टर हम लोगों ने सबने मिलकर खाली करवाए और पजेशन समाज को, ओसवाल सिंह सभा को सुपुर्द किया, जिनकी चाबियां हमने सरदार स्कूल के सेक्रेटरी श्री प्रकाश जी लूणिया साहब को सुपुर्द कर दी। और 2 क्वार्टर जो है वो 5 तारीख तक लगभग उन्होंने अंडरटेकिंग ली भी है, उसमें खाली हो जाएंगे और उसका भी पजेशन पूरा हमें मिल जाएगा। 5 तारीख के बाद में दरूबाग के बाहर के सारे जितने भी क्वार्टर हैं वो पूर्णतः खाली मिलेंगे और उसके ऊपर क्या योजना बनती है वो ओसवाल सिंह सभा जो है वो विचार करके और इस योजना को आगे प्रारूप देगी। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पॉस्ट 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।